أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض وقال تعالى في موضع آخر كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال رواه مسلم۔ باشندگان لٹیا، معزز مسلمانان، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کیے۔ رہنے کو گھر دیا، پہننے کو کپڑا دیا اور کھانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں ہیں، لذیذ پکوان ہیں، ہری ہری سبزیاں ہیں، میوے ہیں، پھل فروٹ ہیں، غلے جات ہیں، اتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم شمار کریں تو شاید ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے شہروں میں چلے جائیں تو وہاں پھلوں کی منڈیاں الگ ہوتی ہیں، سبزی کی منڈیاں الگ الگ ہوتی ہیں، دال کی منڈی الگ ہوتی ہے، چاول کی منڈی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی الگ الگ منڈی ہوتی ہے۔ آپ اگر پھل منڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر ایسے ایسے پھل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ کھانے اور پینے کی چیزیں ایسی اہم چیزیں ہیں کہ انسان اگر بغیر مکان کے بھی رہنا چاہے تو رہ لے گا۔ خانہ بدوشوں کی ایک بڑی تعداد جو بغیر کسی گھر کے رہتی ہے، وہ بغیر مکان کی زندگی گزارتی ہے۔ کپڑا بھی انسان ایک دو ہے، لباس کسی سے مانگ لیا، پہن رہا ہے، ہفتوں ہفتوں اسی کو پہن لے، پھر اس کو جو ہے اس کو صاف کر کے پھر پہن لے تو اس کو بھی اس سے گزارا ہو جائے گا۔ بغیر کپڑے کے بھی انسان چل سکتا ہے ایک دو کپڑے کے ساتھ، لیکن کھانے اور پینے کی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اتنی وافر مقدار میں اس کو رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کیونکہ بغیر کھائے اور بغیر پیے انسان چند دنوں کے جو ہے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمتیں، ان نعمتوں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کس انداز میں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا کر کے رکھنا چاہیے کہ یہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں اور کون دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر ذکر کیا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ کہ ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس کو رکھ دیا، مسخر کر دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ اس میں میوے ہیں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور بھس والے اناج ہیں یعنی غلے ہیں، وَالرَّيْحَانِ اور خوشبودار پھول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی زمین سے آتی ہیں، اور زمین کو اس قابل کس نے بنایا ہے؟ اسی رب العالمین کی ذات نے بنایا۔ اسی لیے اللہ آگے فرماتے ہیں لوگوں سنو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نعمت پہ اگر اللہ رب العالمین کے اس نعمت پر آپ شکر گزاری نہیں کرتے، اس نعمت پہ کم سے کم کرو۔ اپنے صحت اور اپنے جسم کی توانائی پہ شکریہ ادا نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے جو ہے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انسان و جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے، ہم اپنے گریبان میں یہ بات رکھ لیں، یہ پلے باندھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہی کی ساری نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی، بیٹھ گئی، ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا
कि किसने इसको जो है ज़मीन से उगाया है, तो फिर एक और आयत करीमा आप सुन ले, बात वाज़े हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं शुक्रगुजारी कैसे अंजाम। बहुत सारे लोग होते हैं शुक्रगुजारी नहीं अदा करते, वो कहते हैं कि हमने तो पिछले साल 2 कुंटल 2.5 कुंटल पैदावार किया था, इस साल हमने 3 कुंटल 4 कुंटल पैदा किया। अपने फखरिया जुमले बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं तकब्बुर के जुमले बोलते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अफराइतुम मा तहरुथून, तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम जोतते बोते हो, ये जो तुम मेहनत करते हो, तगोदव करते हो, जो रोपाई और बुआई करते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाने वाले? अल्लाह सीधे साफ लफ्जों में सवाल करता है। गोया ये सवाल इनकारी है, तुम नहीं उगाते, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। आप कितनी मेहनत कर लें, आपके बगल में भी आपका भाई मेहनत करता है, लेकिन हो सकता है आपकी पैदावार कम हो, आपके भाई की पैदावार ज्यादा हो, या आपकी पैदावार ज्यादा हो, आपके भाई की पैदावार कम हो। आप उसी जमीन के अंदर से ट्राली ट्राली भर करके गल्ले निकाल लाते हो, ये कौन देने वाला है? क्या जमीन कम होती है? कभी जमीन कम नहीं होती। ट्राली ट्राली भर करके पुआल निकालते हो, उसी से न जाने कितने कचरे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन कम नहीं होती। ये किसकी देन है? ये रब्बुल आलमीन की देन है। हाँ, मेहनत हमारी है, किसान मेहनत करता है, तगोदव करता है। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ लें कि ये जो मेहनत हम करते हैं, जो हम रुपाई के लिए मजदूरी देते हैं, या हम ले जा करके उसमें दिन रात एक करके थकते हैं और उसकी मेड़ बनाते हैं, उसको जो है जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, ये सारी जो मेहनतें करते हैं, अब हम मेहनत कर लिया, हम क्यों अल्लाह के रास्ते में खर्च करें या दूसरों को क्यों दें? तो अपने जहनों से बात निकाल दो मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अगर अल्लाह उगाना चाहे तब उगेगी, और अगर अल्लाह उगाना ना चाहे खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस बात को अपने जहनों में बिठा के रखें। तो सबसे पहली चीज़ इन नेमतों के का तकादा ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रई पैदावार की शक्ल में, धान की शक्ल में हमारे यहाँ जो एक नेमत दे रखी है, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया किस अंदाज में? सबसे पहली चीज़ यह है ज़बानी शुक्रिया अदा करें। ज़बानी शुक्रिया यह है कि आप कहें, अगर कोई पूछे कितना पैदावार हुआ है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैदावार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो हम मजीद तुम्हें देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे, नाशुक्री के जुमले बोलोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे भाई, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं पिछले साल तो 3 कुंटल हुआ था, आपकी बार 2.5 कुंटल हुआ। ये नाशुक्री का जुमला है। हो सकता है आपने पिछले साल इसी तरह का जुमला बोला था और इस बार अल्लाह ने पकड़ की आपकी, और आपके यहाँ कम गल्ला पैदा हुआ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पकड़ होती है, आपको एहसास नहीं होता है मेरे भाइयों। और दूसरी चीज, जो ज़रई पैदावार हुई है उसका अमली शुक्रिया भी अदा करें। अमली शुक्रिया क्या है? अमली शुक्रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि कुलू मिन समरिही, जो भी पैदावार हो रही है उसके फल को खाओ, व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह, और उसके कटाई के दिन उसके साफ सुथरा करके उसके हक को अदा कर दो। उसके कटाई के दिन ही उसके हक को अदा कर दो। उसका हक अभी इंशाअल्लाह बयान करूंगा, उसका एक निसाब है, उसकी एक मिकदार है, ये सारी चीजें मैं इंशाअल्लाह रखूंगा। लेकिन एक और आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपनी पाकीज़ा कमाई हुई रोजियों में से खर्च करो। ये ज़कात का सिस्टम, शरीयत इस्लामिया ने ज़कात का सिस्टम रखा है। पूरी दुनिया के अंदर 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में 2 सिस्टम राइज हैं। एक है सूद का सिस्टम, रिबा जिसे कहते हैं, प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो सिस्टम चल रहा है जो यहूदियों का, नसरानियों का, कुफ्फार का, मुशरिकीन का है। हमको क्या दिखता है कि हम अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर दें, अगर किसी के पास 5-6 लाख रुपया है तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट कर दें तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा।
लोग ज़ाहिर पे देख करके उन पर जो है उसका यकीन हो जाता है कि अगर हम 5 लाख है, 6 लाख है या करोड़ों रुपए है तो बैंक में ले जाकर के फिक्स डिपॉजिट कर दें या बीमा करा लें, हम अपने जीवन बीमा करा लें, इससे हमारा क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल संवर जाएगी। मुस्तकबिल किसी ने देखा नहीं है मेरे भाई। आपके साथ कल क्यों क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है, कोई नहीं जानता है। लिहाजा एक जो सिस्टम चल रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह रिबा को, सूद को मिटाता है, वयुर्बिस सदकात, और सदकात को, ज़कात को बढ़ाता है। एक तरफ सूद, अल्लाह सूद को मिटाता है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, मुशाहदात में ये चीजें हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से किस्तों में पैसे जमा करते थे, करते 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 उनको लालच थी कि इतना पैसा हम जमा कर देंगे, इतना मिल जाएगा और हम एक कोई काम कर लेंगे, बिटिया की शादी कर लेंगे या कोई नौकरी मिल जाएगी उसमें हम पैसा लगा देंगे या जमीन ले लेंगे। किसी मकसद के तहत वो पैसे जमा कर रहे थे, पता ये चला बीमा कंपनी फरार हो गई, पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अल्लाह फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह रिबा को, सूद को मिटाता है, वह युर्बिस सदकात, और सदकात को बढ़ाता है। आपको अगर ये एतबार नहीं है कि सदकात में अल्लाह कैसे इजाफा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर उसको बयान किया है। एक दाना अल्लाह के रास्ते में अगर कोई खर्च करता है, मैंने बयान किया कि एक तरफ सूद, अल्लाह सूदियों को मिटाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन सूद पे पैसे देते हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो क्या हो गए, सड़क पे आ गए, भिखारी बन गए, उनकी जमीन जायदाद लुट गई, दिवालिया हो गया उनका। लेकिन जो लोग सदक़े और खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, ज़रूरतमंदों को वो उधार और कर्ज देते हैं और उसमें भी जो है सहूलत और आसानी के साथ उनको मोहलत देते हैं, अल्लाह उनको बढ़ाता है। अल्लाह फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। सदकात कैसे बढ़ता है? अगर आप सदका देंगे, आप अगर अपने माल को खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी है। क्या मिसाल दी है? सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना व मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसलि हब्बतिन, उसकी मिसाल एक ऐसे दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जिसने 7 बालियों को पैदा किया, फी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली के अंदर 100 दाने। यानी कोई अगर 1 रुपया या 1 दाना, 10 कुंटल की बात नहीं, 1 कुंटल की बात नहीं, अभी जब निसाब में बयान करूंगा कि हर 10 कुंटल में 1 कुंटल, हर 7.5 कुंटल जो निसाब है उसको भी हदीस से मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। अगर 7.5 कुंटल में आप 75 किलो उश्र निकालते हैं तो 75 किलो में कितने दाने होंगे आप शुमार नहीं कर सकते जल्दी। एक दाने की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की कि अगर कोई 1 दाना अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, आप देखें अल्लाह कैसे बढ़ाता है, कैसे उसमें इजाफा करता है। आपका यकीन होना चाहिए, रब पर एतबार होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, एक दाना अल्लाह के रास्ते में किसी ने खर्च किया, उस एक दाने की मिसाल ऐसे है कि जैसे उस एक दाने ने 7 बालियां पैदा की, और हर बाली के अंदर 100 दाने, हर बाली के अंदर 100 दाने, गोया कि 7 बालियों में 100 दाने, गोया कि 700 दाने। एक दाना अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, 700 दाने अल्लाह देने का वादा करता है। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह 700 रुपए का अल्लाह वादा करता है। तो मामूली ना समझें, ये सदका, ये ज़कात, ये जो कुछ सिस्टम जो इस्लाम की तरफ से है, इसमें हमारी बेहतरी, ये सब दिया हुआ उसी का है, उसी के रास्ते में खर्च करना है, वो भी बड़े बड़े वादे के साथ, अजर व सवाब के वादे के साथ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो सिस्टम है ज़कात का, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद है। सबसे पहली चीज़ शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से, दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कहना, दिल से मानना, आज़ा और जवारे से उसके मुताबिक अमल करना। ज़बान से किसी ने कह दिया, दिल से मान लिया, आज़ा और जवारे से उसके मुताबिक अमल कर रहा है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, उसके बाद 4 चीज़ें और बचती हैं अरकान इस्लाम में। कौन कौन सी चीज़? एक है नमाज, नमाज सबको पढ़नी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। रोज़ा, रमज़ान के रोज़े सबको रखने हैं, चाहे अमीर हो चाहे
गरीब हो। बचती हैं दो चीज़ें, दो अरकान ऐसे हैं जो सिर्फ अमीरों पे फ़र्ज हैं, ज़कात और हज बैतुल्लाह। जिसके पास पैसा हो, जिसका निसाब पहुँचता हो, वही ज़कात देगा, और जो इस्तिताअत रखता हो, जो ताकत रखता हो वज बैतुल्लाह जाने का, तो उसके पास ताकत हो वो शख्स जाएगा। तो ये दो चीज़ें सिर्फ अमीरों पे है और दो चीज़ें अमीर गरीब सब पे है। आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबको कहना है, लेकिन दो चीज़ें सिर्फ अमीरों पे हैं और दो चीज़ें अमीर गरीब सब पे हैं। तवाज़ुन कैसा शरीयत ने मुकर्रर किया है, एक बैलेंस बना के रखा है, ताकि अमीर अमीर ना बने, अमीर बनता जाए अल्लाह के नज़र में, लेकिन गरीबों को भी ना भूले। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सिस्टम बयान किया है, ये जो सिस्टम रखा है, अगर कोई इनकार करता है ज़कात का, उश्र ना देता है, तो फिर याद रखिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जंग और जिहाद का क़स्द किया था, जिहाद किया था, माने इन्हें ज़कात से। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इनकार कर दे हम ज़कात नहीं देंगे, उश्र नहीं देंगे, चार चीज़ों में ज़कात होती है, ये भी वाज़ेह कर दूँ, चार चीज़ों में ज़कात दी जाती है। सबसे पहली चीज़ है सोने और चांदी। अगर सोना 87 ग्राम और चांदी 595 ग्राम किसी के पास है और उस पर साल गुजर गया है, साल गुजर गया है, तो उसमें 2.5% है, या इसी के बराबर पैसा उसके पास है और वो पड़ा रहा, उसमें कमी नहीं हुई, तो उसमें भी 2.5% है, ये ज़कात है। दूसरी चीज़ ये है ज़रई पैदावार में ज़कात। ज़रई पैदावार के बाद अभी मैं इंशाअल्लाह इसको बयान करूंगा कि कितने में कितना है। उसके बाद एक और चीज़ है मवेशी में जो है ज़कात, यानी अगर जानवर हैं, बकरी है, जो है गाय है, इसमें भी है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है रेवड़ नहीं है, तो उसमें आप ना पढ़े तो बेहतर है। तीसरी और चौथी चीज़ ये है कि सामान्य तिजारत में भी ज़कात है, सामान्य तिजारत में भी वही निसाब है जो सोने और चांदी में। तो ये चार चीज़ों में ज़कात दी जाती है, लेकिन ज़रई पैदावार में कितना ज़कात है और कितने में कितना है, निसाब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दिया है कि कितने में कितना है। निसाब क्या है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिसके यहाँ भी 5 वसक़ पैदावार हुई है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैसा फीमा दूना खम्सति औसुक़िन सदक़ा, 5 वसक़ से कम में सदका नहीं है। अगर किसी के यहाँ ज़रई पैदावार हुई है, धान की शक्ल में, गेहूं की शक्ल में, या मकई की शक्ल में, चने की शक्ल में, हर वो चीज़ जिसको ज़ख़ीरा किया जा सके, जिसको ज़ख़ीरा किया जा सके। बहुत सारे इख्तलाफात लोग बयान करते हैं, मैं इख्तलाफात में नहीं पढ़ना चाहता, धान में ज़कात है कि नहीं है, चावल में ज़कात है कि नहीं, ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं आपको वाज़ेह उसूल बयान करना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो काबिल ज़ख़ीरा हो, स्टोर किया जा सके, मसनूई स्टोर नहीं कि कोल्ड स्टोर है उसमें रख करके बड़े दिनों तक, आज सेब तो भी रखा जा सकता है, तो सेब में, फलों में ज़कात नहीं है, फलों में सिर्फ किशमिश में ज़कात है, खजूर में ज़कात है, जो ऐसे ही काफ़ी दिनों तक अपने आप बरकरार रह सकती है, ख़राब नहीं होती। तो अगर उसे ज़ख़ीरा किया जा सके और उसे तौला जा सके, तो उन दो चीज़ों में ज़कात है। जैसे चावल है, कई सालों ऐसे पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता है, गेहूं ऐसे ही कई सालों तक पड़ा रहता है, खराब नहीं होता है। तो ऐसे ही मकई है, ऐसे ही जो है बाजरा है, ऐसे ही जो है चना है, इन तमाम चीज़ों में ज़कात है। लेकिन कितने में कितना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैसा फीमा दूना खम्सति औसुक़िन सदक़ा, 5 वसक़ से कम में सदका नहीं है। यानी 5 वसक़ से कम किसी के यहाँ पैदावार हुई है तो उसके अंदर सदका नहीं है। 1 वसक़ 60 सा का होता है, ये इत्तेफाकी मसला है, किसी का इख्तलाफ नहीं है। और 1 वसक़ 60 सा का होता है, तो 60 सा 6 पचे 30, 300 सा का 5 वसक़ हुआ। और 1 सा कितने का होता है, इसमें इख्तिलाफ है। इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह वगैरह के नज़दीक 2 किलो का 1 सा होता है, और इब्ने बाज़ रहमहुल्लाह वगैरह के नज़दीक 3 किलो का 1 सा होता है। लेकिन ना 3 किलो ना 2 किलो, बीच की दरमियानी राह इख्तियार की गई है कि अगर 2.5 किलो है तो 1 सा माना जाएगा। जैसा कि हम लोग ईद उल फित्र के मौके पर 2.5 किलो गेहूं निकालते हैं, ईद उल फित्र के मौके पर सदक़तुल फित्र कितना निकालते हैं? 2.5 किलो। तो गोया अगर हम 300 सा को 2.5 से कैलकुलेट करेंगे, ज़रब करेंगे, तो हम कितना होगा? 7.5 कुंटल।
7.5 कुंटल अगर किसी के यहाँ पैदावार हुई है तो उसके ऊपर उश्र वाजिब है या निस्फे उश्र वाजिब है। ये एक बात और याद बयान कर दूं कि अगर किसी के यहाँ 6 ही कुंटल पैदावार हुई है तो एहतियातन वो निकाल दे, जैसा कि इब्ने उसैमीन वगैरह रहमतुल्लाह ने कहा कि अगर वो 2 किलो का एक सा होता है तो अगर किसी के यहाँ 6 ही कुंटल पैदावार हुई है तो एहतियातन वो उश्र निकाल दे या निस्फे उश्र निकाल दे। तो ये निसाब है। अब कितना निकालना, ये निसाब हो गया कि 7.5 कुंटल या 6 कुंटल जिसके भी पैदावार हुई है वो निकाले उश्र। और कितना निकालेगा, कितना निकालेगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बयान कर दिया। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी हदीस हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फीमा सक़तिस समाउ अल उश्र, ये 10वां निकालना है या 20वां निकालना है, 5% निकालना है या 10% निकालना है, इसका मेयार सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्या है? पानी है, खाद नहीं है, मजदूरी नहीं है, मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी मेयार है। आप 10वां कब निकालेंगे, 20वां कब निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मेयार है, हद फासिल क्या है, पानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फीमा सक़तिस समाओ, आसमान जिसे सैराब करे, वल उयूनो, और उसे नदी नाले या चश्मे सैराब करें। नहर से पानी मिल जा रहा है, चश्मों से पानी मिल जा रहा है, सैराबी का इंतजाम हो रहा है, आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आप ज्यादा मशक्कत नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। औकाना अथरियन, या आपकी जमीन ऐसी जगह पे नशीबी जमीन है जहां पे पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही खलार जमीन है, वैसे ही पैदावार हो जाती है। तो उन तमाम जमीनों में जो पैदावार हो रही है उसमें कितना है, अल उश्र 10वां हिस्सा है, यानी 10% है। हर 10 किलो में 1 किलो, हर 10 कुंटल में 1 कुंटल है, यानी 7.5 कुंटल जो निसाब है उसमें 10वां हिस्सा कितना, 75 किलो। और अगर पानी ज्यादा नहीं मिल रहा है, आप ज्यादा, जैसे मान लीजिए ऊंचाई पे जमीन है या बारिश नहीं हो रही है उस साल, नहर का पानी भी नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमा सुक़िया बिन नज़ही, और जिसे सैराब किया गया हो तो निस्फुल उश्र, उसमें 20वां हिस्सा है, यानी 5% है। हर 5 किलो में 1 किलो नहीं, हर 20 किलो में 1 किलो है, यानी 20वां हिस्सा है। तो इस तरह से आपके 7.5 कुंटल के अंदर 20वां हिस्सा जो होगा वो 37.5 किलो होगा। तो ये निसाब है, कितने में कितना है। मेरे भाइयों, आप अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो उसके जबरदस्त फवायद हैं। जबरदस्त फायदों में से एक फायदा यह है कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े के दरिया से आपकी हिफाजत करेगा, आपके घर वालों की हिफाजत करेगा, आपके माल मनाल की हिफाजत करेगा। क्यों? आप जाते हो जब बाजार के अंदर, तो बाजार से जो चीजें लाते हो, मान लीजिए खरबूजा लाए, केला लाए, तो क्या वैसे ही छिलके के साथ खा लेते हो? ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसका छिलका निकाल करके गूदा खाते हैं। केले का छिलका निकाल करके केले खाते हैं, उसके गूदे को खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा छिलके सहित खा लेते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो एक तो जबरदस्त फायदा यह है कि दुनिया में भी जैसे 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे अल्लाह 700 रुपया देगा, उसी तरीके से जन्नत के अंदर भी आपका दाखिला होगा। जैसा कि जन्नत के अंदर एक दरवाजा है बाबुस सदका, बाबुस सदका। ये जो जन्नत के दरवाजे हैं, बाबुस सलाह है, बाबुर रैयान है, बाबुस सदका है। ये जो आदमी बहुत ज्यादा सदक़े और खैरात करता था, ऐसा आदमी जो मुत्तसिब भी सदका होगा, उस शख्स को जन्नत के उस दरवाजे से बुलाया जाएगा, आओ इस तरफ से चले आओ, इस तरफ से चले जाओ। तो मेरे भाइयों, बात लंबी हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ज़कात देंगे, सदका देंगे तो आपका फायदा होगा, और इसके साथ साथ जहां जन्नत में आपको दाखिला मिलेगा, अर्श इलाही में भी आपको जगह मिलेगी। जैसा कि वो 7 लोग जो अर्श इलाही के नीचे साया पाएंगे, उसमें से एक शख्स वो होगा कि जो अपने दाएं हाथ से खर्च करेगा, बाएं हाथ को पता भी नहीं चलेगा, बाएं हाथ को पता भी नहीं चलेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से एक मर्तबा खिताब करते हुए फरमाया था, औरतें भी हो सकता है सुन रही हो, क्योंकि जन्नत में दाखिला और जहन्नम से आज़ादी, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपसे अगर कोई पूछे सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो हो सकता है सबसे बड़ा कामयाब कौन है, इस सवाल का जवाब आप दें कि सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसके पास गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, नौकरी हो,
नहीं मेरे भाइयों, ये दुनियावी कामयाबी है, जुज़वी कामयाबी। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से रोक करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तहक़ीक़ी वो शख्स कामयाब हो गया। तो अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो आप जन्नत के हकदार होंगे, बाबू सदका से आपका दाखिला होगा और जहन्नम से आज़ादी मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा औरतों के यहाँ से गुजरे, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का मौका है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, औरतों को देखा, अल्लाह के नबी ने कहा, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सदका करो। औरतों से क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुम सदका करो, तुम ज़कात दो, तुम सदका करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्यों? वजह बताई, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, क्योंकि मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। जब अल्लाह के नबी मेराज के मौके पर गए तो जहन्नम में जब झांका तो उसमें मर्दों के मुकाबले में औरतें सबसे ज्यादा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, औरतों की जमात, तुम सदका करो। औरतों ने पूछा, एक औरत ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तकफुरन अल-अशीर, तुम अपने शोहरों की नाफरमानी किया करती हो, व तुकसिरन लाना, और लान तान कल ज्यादा करती हो, ये सबब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह बताई कि कैसे निकलोगी जहन्नम से, सदक़े के दरिया से। मेरे भाइयों, सदका अगर देंगे तो जहन्नम से आज़ादी मिलेगी, जन्नत में दाखिला मिलेगा, दुनिया में भी हिफाजत होगी। कैसे हिफाजत होगी? और अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखें, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया है। क्या कहा? कि लम यमना कौमुन ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, कि कोई भी कौम के लोग जब अपने माल की ज़कात से आनाकानी करते हैं तो आसमान से बारिश रोक ली जाती। इसी साल पता नहीं कितने ऐसे मौके आए, हम ट्रैक्टर लेकर के खेत में पहुंचे, बादल उमड़े लेकिन बरसात नहीं हो रही। हमारी इंतजार के बावजूद, हमारे शिद्दत के इंतजार के बावजूद बरसात नहीं हो रही, हमारी चाहत के बावजूद वक्त वक्त पे बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बारिश हुई है लेकिन ताखीर से हुई है। अभी देखिए सिंचाई का वक्त चल रहा है, बारिश का मौसम हो, अभी देख परसों बदली थी, बारिश होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। इसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि जिस कौम के लोग आनाकानी करते हैं तो ऐसे कौम से बारिश रोक ली जाती है। तो ये बारिश ना होने का, और अगर आप देंगे अल्लाह के रास्ते में ज़कात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक आदमी भी अगर अल्लाह के रास्ते में ज़कात देता है, सदका करता है, तो उसके सिंचाई का इंतज़ाम अल्लाह करता है। मुस्लिम शरीफ में एक रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं। वक्त ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक। तो मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, कहते हैं कि एक आदमी था, वो चटियल मैदान में जा रहा था। हम लोग परेशान रहते हैं सिंचाई के सिलसिले में, इसके सिलसिले में, उसके सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पिछले जमानों में एक आदमी चटियल मैदान में जा रहा था, उसने इतने में एक आवाज सुनी, क्या इसकी हदीक़त फुला, जाओ फुला के बागीचे को सैराब करो। उसने अगल बगल देखा, मुड़ मुड़ करके कोई आदमी नहीं, ये तो चटियल मैदान है, लकोदक सहरा है, कोई नजर नहीं आ रहा। उसने आवाज नजर ऊपर घुमाई तो देखा कि बादलों के ओट से आवाज आ रही है। वो बादल जा करके एक पथरीले जमीन पे बरसे और उस पथरीले जमीन से एक नाली बनी हुई थी, उस नाली से पानी बह करके चला जा रहा था। वो आदमी उस जो है पानी के पीछे पीछे चल रहा था। जा करके देखा कि एक आदमी फावड़ा लिए हुए, कुदाल लिए हुए है, और वो पानी जो नाली से आ रहा था, उस पानी को अपने खेत की तरफ मोड़ रहा था। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम फलां है। कहा, मैंने अभी यही नाम बादलों के ओट से सुना है। क्या करते हो? कहा कि मैं इस पैदावार से 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने अहल वयाल को देता हूं उनके खर्च के लिए, दूसरा हिस्सा अपने इसी जमीन में लौटा देता हूं, यानी खेती करते वक्त जो खर्च होता है इसी से मैं काम चलाता हूं, और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन को दे देता हूं। कहा, इसी की वजह से ऐसा है। और याद रखिए, इस तरह से अल्लाह इंतजाम करता। और अगर नहीं देंगे ज़कात तो असहाबुल जन्ना का वाक़या कुरान करीम के अंदर, आप भूले नहीं इसको, सूरह नून में, सूरह कलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से जिक्र किया। नई जनरेशन बैठी है,
इनको समझाने की ज़रूरत है। ये जो बूढ़े जो ज़कात देते थे, जो उश्र निकालते थे, जो ज़कात देते थे, पैसे देते थे अल्लाह के रास्ते में, जो दीन के कामों में ताउन करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं। नई जनरेशन कहते हैं हमारे बाप तो बेवकूफ़ है, उठा करके दे देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबुल जन्ना का वाक़या सूरह कलम के अंदर जिक्र किया है कि इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबल जन्ना, कि हमने इन मक्के वालों को आजमाया ऐसे ही जैसे बाग वालों को आजमाया था। ये बाग वाले कौन थे? ये जो यमन आज हम लोग जानते हैं, एक मुल्क है सऊदी अरबिया से मुत्तसिल छोटा सा, उसे पहले सना के नाम से जाना जाता था। उसी के 10 किलोमीटर के फासले पर एक जो है बाग था। उसी बाग के मालिक थे, बड़े नेक थे। वो भी 3 हिस्से ऐसे किया करते थे, एक गुरबा मसाकिन को दे देते थे और दूसरा हिस्सा अपने अहल को दे देते थे, तीसरा हिस्सा उसी में लौटा देते थे। बहुत बड़ा बाग था खजूरों का, उसमें बहुत सारी खेतियां थी, फल फ्रूट थे, लेकिन गुरबा मसाकिन की देख रेख किया करता था। लेकिन जब उसके 3 बच्चे वापस उसके वारिस हुए, बाप का इंतकाल हो गया, तो बच्चे जब वारिस हुए प्रॉपर्टी के, तो उन तीनों ने कहा कि हमारे बच्चे बाप जो थे बड़े बेवकूफ़ थे, गुरबा मसाकिन को दे देते थे, हम नहीं देंगे, हम मेहनत करें गुरबा मसाकिन को दे देते। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों और दोस्तों। उन्होंने अपनी नीयतों में खोट किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका वाक़या बयान किया है, इज़ अक़समू लियस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, उन्होंने कसम उठाई कि हम उसे सुबह में काट लेंगे। वला यस्तस्नून, और इस्तिस्ना नहीं करेंगे, गुरबा मसाकिन को नहीं देंगे, हमारे बाप देते थे हम नहीं देंगे। ये नीयतों में खोट आया उनके। फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, तो तेरे रब की तरफ से चक्कर लगाने वाले ने चक्कर लगा दिया इस हाल में कि सोए हुए थे। अजाब का फरिश्ता आया, पूरी की पूरी खेती भस्म हो गई। उसके बाद पूरा वाकया है तफसील से। उसके बाद जब तीनों बच्चे गए, फल लदा हुआ था, खेती लदी हुई थी। हम भी कभी कभार ऐसा होता है, अभी जब गेहूं की फसल कटने की बारी आएगी तो हम भी डरे होंगे कि कहीं से कोई चिंगारी ना उठ जाए, पूरी पूरी फसल ना तबाह हो जाए। हम डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचना है तो फिर याद रखें उसके हक को अदा करें। आप सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह के ज़कात जो आपने दी है उसकी वजह से अल्लाह आपके माल को बचाता है। और अगर ज़कात नहीं देंगे तो कितना ही आपका माल खत्म हो जाएगा, आपकी जेब ढीली हो जाएगी। आप पंप सेट लगा करके तेल भर भर करके आप न जाने कितने कैलकुलेशन आपके बिगड़ जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब वो पहुंचे हैं उस जो है बागीचे में कि चले फल उतारने के लिए, तो उसके बाद देखा एक ने कहा इन्ना लज़ालून, हम तो महरूम हो गए, हम तो गुमराह हो गए, हम रास्ता भटक गए, हमको जाना कहीं था, चले कहीं आए हैं, अपने बागीचे में नहीं आए हैं। एक ने कहा कि नहीं बल नहनु महरूमून, हम तो महरूम कर दिए गए, गुरबा मसाकिन आकर के पहले ही लेकर चले गए। तीसरे ने कहा काला औसतुहुम, उनमें से ठीक ठाक जो था उसने कहा अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था जब तुम्हारी नीयतों में खोट आया था तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करते। तस्बीह बयान करना चाहिए था, अल्लाह की पाकी बयान करना चाहिए था। कि तुम्हारी नीयतों में खोट आ रहा था तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करना चाहिए था। तो उसके बाद लगे हैं कहने कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। जब देखा है भस्म हो गई खेती, तब उनको ख्याल आया, कहने लगे अल्लाह की ज़ात पाक है, हम ही जालिम हैं। आपस में एक दूसरे पर मलामत करने लगे, तेरी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद फिर वो कहने लगे सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, हम ही शरकश हैं। उसके बाद रुजू किया अल्लाह की तरफ, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, उम्मीद है कि हमारा रब इससे बेहतर खेती हमें देगा। उन्होंने रग़बत अल्लाह की तरफ की, तौबा किया, रुजू किया। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल अज़ाब, अज़ाब तो इसी तरह होता है। वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, और आखिरत का अज़ाब सबसे बड़ा है। लौ कानू यालमून, अगर ये जानते। तो सबसे खुलासे कलाम ये है कि जो पैदावार हुई है उस पैदावार में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक़ है, गुरबा मसाकीन का जो हक़ है उसको अदा करें, और इसके अदायगी से आपका भला होगा, आपके समाज का भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा, आपके खुद माल की सफाई होगी, और जो मैल कुचैल है उससे आप पाक होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारलाहा तो हम तमाम लोगों को अपनी दी हुई नेमतों पर बेहतरीन शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमा।